Okay, Ji. Today we'll be basically discussing about the basic concepts that are related to the corporate governance. Although in the previous lecture we had certain discussion about it, that what is corporate governance, we just had an idea from you people. Most of the people discussed their ideas that what basically is a corporation, what do we mean by governance. So in this lecture, inshallah, we will discuss all these things in detail. So starting with the basic thing, that is corporate governance. Corporate governance comprises of two words. One is the corporate, the other one means governance. What does the word corporate means or corporation means? So large companies, multinational companies. Very good. It includes multinational, it may include the national companies. Basically, corporation refers to the third form of the business organization that includes the businesses. Last time we discussed that on the basis of the ownership, businesses are divided into three categories. The first one is sole proprietorship. As the name suggests, sole proprietorship means the business which is owned and controlled by a single person. Sole means single, proprietor means owner. So it is a business which is owned and controlled by a single person. Normally, the retail and wholesale shops, these are the examples of the sole proprietorship business organization. Then there is a second form of the business organization, which is known as partnership. In case of partnership business organization, two or more people basically pool their funds to start or carry out any business organization. The minimum number of partners could be two. What is the maximum number or what is the maximum limit? 20। Very right, 20. Generally, there are two और people. बैंकिंग बिजनेस में सर, बैंकिंग बिजनेस में 10 होती है और वैसे नॉर्मल बिजनेस में जो है वो 20। G, very right. According to Partnership Act 1932, the maximum number of partners for any business organization could be 20, with an exception of the banking businesses, in which the maximum limit is 10. And then there is a third form of the business organization, which is known as corporation. These are the large scale business organizations, basically, which is, if we define it properly, it is an artificial legal person created by law, having certain characteristics such as unlimited life, limited liability, a common seal. So these are the business organizations that operate on the large scales. They have a large number of the owners or the shareholders associated with them. So going forward, if we talk about the corporations, so the first question that comes in mind is what is a company? So we have already discussed that this is the third form of the business organization, which includes a large scale business organization which operate on the national and international level, having different characteristics as compared to the partnership and sole proprietorship business organizations. So what are those characteristics which differentiate it from the other business organizations? Any idea about it? What are the different characteristics of a corporation? सर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, Ji. What does this concept means limited liability? सर बेसिकली जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, जितने उन्होंने शेयर परचेज या ओन किए होते हैं उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है। जबकि अगर हम पार्टनरशिप की या सोल ट्रेडरशिप की बात करें तो इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी बिजनेस के डेट्स अदा करने पड़ते हैं। Very good, Ji. Very rightly said. Okay, normally what happens is in case of sole proprietorship and partnership business organization, the liability of the owners is unlimited. Liability of the owners is unlimited means that in case of loss, their personal assets can be sold to recover the loss. But in case of corporations, the liability of the shareholders is limited, and generally it is limited up to the investment that they have made in the business organization. So, for instance, if you have purchased shares worth rupees, let's suppose 50,000 of any business organization. So, whatsoever the overall loss is, you are only liable to pay 50,000 to that business organization. So, this is basically the concept of a limited liability. Very right. What else? What could be the other characteristics of a corporation? Separate legal entity. Very good. Separate legal entity. What does this means? सर कंपनी की जो अपनी पहचान होती है शेयर होल्डर्स से ये सेपरेट होती है। कोई भी अगर मतलब काम करेंगे कंपनी के नाम से किया जाएगा, शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं किया जाएगा।
ठीक इसकी है। अपनी एक अलग से पहचान होती है। तो व्हाट अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस? तो उसमें मतलब वो लीगली सेपरेट नहीं होते, कंपनी लीगली सेपरेट है, लेकिन अगर हम बिजनेस अकाउंटिंग में देखें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन एज अ मतलब जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और लॉ ने इसको एक अलग हैसियत दी हुई है सर। ठीक है। ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी ये होती है कि इसमें जो कंपनी है वो अपने नाम से बिजनेस करती है और मार्केट में जितना भी वो लैंडिंग वगैरह करेगी कंपनी के नेम से करेगी, शेयर होल्डर्स के नेम से नहीं करेगी। Very बल्कि जो rightly सोल said, Yunusmi. प्रोप्राइटर Those people who are from the accounting background, they can simply recall कि accounting में जब books of accounts से maintain करते हैं तो we use a separate entity concept. Separate entity concept means that we treat owners separate from the business. So all the transactions that are related to the business are actually recorded in the books of accounts जो है. Owner की personal transactions हम record नहीं करते. But that business entity concept is applicable to sole proprietorship, partnership and corporations. Books of accounts बनाते हुए तीनों पे applicable होगा. But as far as law is concerned, तो legally sole proprietorship और partnership business organizations की कोई separate entity नहीं है, कोई separate existence नहीं है. That is basically existing because of the owners of the business organization. But in case of corporations, legally these are considered as separate entities. So likewise, what Adil said, कि जैसे एक सिंपल पर्सन जो है ना वो लोन ले सकता है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशंस के नाम के ऊपर क्या किया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है. इसी तरह कॉर्पोरेशन के नाम पे इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ना वो की जा सकती है. तो यहाँ पे ऑनर की एग्जिस्टेंस और बिजनेस की एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेपरेट है. इसी वजह से इनकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड होती है सर, Continuous. Life is unlimited. लॉन्ग लाइफ Continuous. होती है. Yes. Very good, Joanna. They have perpetual existence, they have long life, they have unlimited life. Reason being कि ऑनर्स की क्योंकि एग्जिस्टेंस सेपरेट है, तो ऑनर्स की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने डेली बेसिस के ऊपर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर मिलियंस ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है जो है ना, ठीक है. मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं, शेयर्स को बाय करते हैं. But because of that buying and selling, there is no effect on the existence of the company. Company अपनी जगह जो है ना वो stay करती है, survive करती है. Owners change होने से उसका ऊपर कोई भी effect नहीं है. But in case of sole proprietorship business Yes, sir. organization, if owner dies, the business would wind up. Legally उसकी existence जो है ना वो खत्म होगी. इसी तरह से in case of partnership business organization, if any partner leaves the partnership business organization, if any partner retires, if any partner gets insolvent, if any partner gets insane, because of any of these reasons, the partnership would dissolve. But in case of corporations, despite of the fact that a large number of the people are coming and leaving the business organization, still there is no effect on the life or existence of the business organization. What else? Taxation के Transferability तरीके क्या होते हैं? ट्रांसफर जो होते हैं शेयर्स का वो इजी हो जाता है इसमें. Very right. Easy transferable. Very right. Easy transfer of ownership है. In case of sole proprietorship business organization, you have to sell your business to someone else. Sometimes it takes time. Sometimes you are unable to sell the business. In case of partnership business organization, unless or until other partners are willing to let another person come into the partnership business organization, you won't be able to sell your share. But in case of corporations, you can easily transfer your shares. If you want to sell the shares, the company's shares are actively traded in the market. You can simply contact a stockbroker, and through stockbroker, you can sell the shares, or you can directly sell it through the stock market if you have a brokerage firm account. तो वहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, कॉर्पोरेशंस के अंदर बहुत इजी है एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप and partnership business organizations. Very rightly said. What about the taxation perspective? Corporation में taxation का क्या जो है ना होता है? सर इसमें जो है ना ये इनका ड्रॉबैक है एक, उसकी रीजन ये है कि कंपनी के अपने नेम पर भी टैक्स की डिडक्शन होती है और पर्सनल इनकम जो शेयर होल्डर है उसकी भी इनकम पर डिडक्शन होती है. तो इस प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो कंपनी के हवाले से और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है. ठीक है. उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि इफ यू रिकॉल द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वी हैव द सेल्स. From sales, we deduct the cost of goods sold to get the gross profit of the business organization.
Then we deduct the selling and admin expenses to get the operating profit or earning before interest and tax. From earning before interest and tax, we deduct the interest expense to get earnings before tax. इसमें से हम क्या करते हैं, टैक्स एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या नेट इनकम आफ्टर टैक्स। ये जो हमारे पास बिजनेस की अर्निंग्स थी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो इस पे देखिए हमने क्या किया है, टैक्स पे किया है। और ये जो हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आई हैं, इसमें से फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिविडेंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो क्या चीज आ जाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं। तो एक दफा जो कंपनी का प्रॉफिट था उसके ऊपर टैक्स पे हुआ, ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स थी, ऑन दैट यू हैव पेड द टैक्स। सेकेंडली, व्हेन दिस प्रॉफिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, पर्सनल टैक्स रिटर्न के तौर के ऊपर जब टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो करेंगे, तो अलॉन्ग विद देयर पर्सनल इनकम वो इस डिविडेंड को भी एज इनकम जो है वो शो करेंगे। तो एक दफा कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगा, अब दूसरी दफा जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो इनकम है, उनका जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या इन केस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि उनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो लीगल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से जो टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है वो ऑनर की टैक्स रिटर्न है। तो जो ऑनर होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा, वो बिजनेस की इनकम को पर्सनल इनकम के तौर पे शो करेगा, तो उसकी जो पर्सनल इनकम है उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देयर इज अ सिंगल टैक्सेशन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इन केस ऑफ द corporations there is concept of double taxation. I hope this is clear. Yes, sir. यस सर। सर असल में जो फाइनेंस वाले नहीं है सर, उनके लिए थोड़ा सा सर वो टर्म सर मुश्किल होगी। नहीं, क्यों उनके लिए मुश्किल हो जाती है, ये तो एक नहीं, आसान सर सी वो बात इसलिए यहाँ ना पे। कि सर वो मींस के सर पार्टिसिपेंट्स अपना अपना व्यू दे रहे ना, तो फिर आप बीच में सर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ठीक है। सर बेहतर ये होगा सर अगर आप उसको थोड़ा सा डीपली हर टर्म को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन। मैं एक साइड से बोलता जाऊंगा तो वो तो ऐसा होगा मैं बोली जा रहा हूँ, बस आप सुनते जा रहे हैं जो है उसमें। तो ऑल्दो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसमें शायद फाइनेंस वालों को कुछ थोड़ा सा एडवांटेज है, बट दीज आर कॉमन थिंग्स। मतलब मेरे ख्याल में तो जो अगर कोई भी बिजनेस ग्रेजुएट है, ही और शी शुड बी फेमिलियर विद दीज थिंग्स के टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं और उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डबल टैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है या सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा जो है ना अकाउंटिंग या फाइनेंस वालों के जो है ना वो जरा ज्यादा रेलिवेंट है। बट अदर देन दैट कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो जाती है या उसकी जो है ना परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, या हम कहते हैं जी कि सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे जो है ना कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो जेनेरिकली सबको पता होने चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। wherever you feel anything that needs to be further discussed, just feel free to ask जो है ना कि सर ये चीज और एक्सप्लेन कर दें, I'll explain it जो है ना उसमें। ठीक है जी। ओके जी, okay, now we will discuss about, and then there are different types of the companies, but before going to the different types of the companies, whatever we have discussed till now, these are some of the most commonly used characteristics of the business organization. Anything that is not clear, you may ask me. जी, anything from your side that you need to discuss? ये सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जी। Any question from anyone? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूछ रहे हैं। जी, board of director is a new thing. Basically, there are two parties in the corporations or normally in the business organizations. One are the owners,
the other one are the managers or the employees of the business organization. तो वो जो मैनेजर्स या एम्प्लॉयज हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, आप लोगों ने एजेंसी प्रॉब्लम पढ़ी होगी, जो है ना, एजेंसी थ्योरी को पढ़ा होगा, क्या होती है? यस सर, पढ़ा है। Conflict between management and Between shareholders. principal and agent. Very good. Sometimes there arises a conflict between principal and the agent. Principal are the owners of the business organization. Agents are basically the managers of the business organization. किस किस्म का conflict हो सकता है? कुछ झगड़ा वगैरह हो सर जाएगा उनका उनका? इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं सर, Conflict of interest. उनका जो डिविडेंड पे इंटरेस्ट हो रहा था वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। For उसमें सर example, कोई example देंगे? जो डायरेक्टर्स होते ऑनर्स होते हैं वो प्रॉफिट लेना चाह रहे होते हैं, जबकि जो मैनेजमेंट होती है सम टाइम उनका पर्सपेक्टिव सिर्फ अपनी सैलरीज होती हैं। ठीक सर है। मैनेजमेंट का जो नॉन मोटिव है ना सर, जो अपने शेयर होल्डर्स पर्क्स वगैरह के लिए वो करते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में, और जो ऑनर्स होते हैं उनको सही से रिप्रेजेंट नहीं करते समटाइम चीजों को, सर, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में वो रखते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करें, मतलब ये मेन। तो अगर वो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है सर। यार ये जो problem। फाइनेंस वाले लोग हैं ना, ये टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करें, फिर बाकी लोग गिला करते हैं, वो फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे झगड़ा हो जाएगा कि ये इसका क्या मतलब होता है जोनस में। सर मैनेजर्स अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, अपने मफाद को देख रहे होते हैं, और ओनर्स अपने मफाद को देख रहे होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आता है इनमें। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं। ऑनर्स का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि दे शुड गेट हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, दे शुड गेट हायर प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। अब होता ही है कि हायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम फाइनेंस के अंदर जनरली ये बात करते हैं कि हायर द रिस्क हायर विल बी दी रिटर्न। जितनी ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर Return. उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न हाई होगा। नाउ द शेयर होल्डर्स वांट्स हायर रिटर्न, लेकिन उस हायर रिटर्न को अर्न करने के लिए मैनेजर्स हैव टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क। So if they are going to take extra risk, sometime it may happen that it would lead to the downfall of the corporation or the company. And for that purpose, the managers would be held liable for that कि आपने riskier investments क्यों की थी, आपने क्यों unnecessary risk जो है ना लिया था। So in order to play safe, the managers want to make investment in those projects which are comparatively less riskier but yet profitable. So now there could be a conflict of interest between the managers and the shareholders. Managers want to play safe. They want to make investment in the less riskier projects. However, on the other side, the managers, the shareholders of the company are expecting higher profits. So they are not concerned, they are least bothered about this thing, whether the projects are having higher risk or not. तो यहाँ पे conflict of interest आ गया कि shareholders higher return expect कर रहे हैं, managers चाहते हैं जी कि उसमें जो कम रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मैनेजर या शेयर होल्डर का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो लोगों में जो झगड़ा हो जाता है तो किसी ना किसी को जो है ना वो एज अ थर्ड पार्टी उनकी आपस में सुलह करानी होती है, सेटलमेंट करानी होती है, जो है ना उसमें कोई ना कोई सॉलिसिटर का रोल जो है ना वो प्ले करेगा। तो जस्ट लाइक दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लेज अ मिडल मैन रोल इन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट जो है ना उसमें, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, बाय इन्फ्लुएंसिंग और बाय सुपरवाइजिंग द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये ट्रायंगुलर अप्रोच बन गई। पहले दो पार्टीज थी, प्रिंसिपल्स और एजेंट्स, अब ये तीन पार्टीज बीच में जो है वो इनकॉर्पोरेट होगी। एक आपके जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, एक डायरेक्टर है। दूसरी जो पार्टी थी वो आपकी एजेंट थे, और ये एक दरमियान एक और पार्टी क्रिएट होगी which are acting as watchdogs, ठीक है। and who are they? These Auditors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, are basically the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर एक क्वेश्चन है वैसे यहाँ जी पे, जी प्लीज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी मींस के उनको भी पे किया जाता है उनका सर्विस के जो भी जी सैलरी बिल्कुल ठीक है, रिटर्न पे किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वो भी मैनेजमेंट के साथ मिलके कोई ऐसा काम करें कि जहाँ पे जो है वो लेट डाउन हो जाए उनका बिल्कुल हो सकता है। shareholder का। देखें अब ये चीज इंश्योर करना कि एक परफेक्ट सिस्टम हो वो तो पॉसिबल नहीं है,
एक साइड पे आपके पास लेट्स सपोज ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके वॉच डॉग्स यहाँ पे नहीं है, तो वहां पे तो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो तो एजेंट्स के रहमो करम के ऊपर है कि जो मैनेजर्स करेंगे एट द एंड ऑफ द डे उसकी रिपरकशन जो है ना वो किसने बियर करनी है, शेयर होल्डर्स ने करनी है। अब उस सिचुएशन में नॉर्मली क्या है कि जो ये जो कॉन्सेप्ट राइज होता है वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल से आता है, जो ना उसमें कि ऑनरशिप कुछ और लोगों की है, कंट्रोल जो है वो कुछ और लोगों के पास है। वेस्ट मेजरली मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं दीज आर of this view that they are their ownership is diluted. Ownership is diluted means generally the shareholders are not the active participants of the business organization. पाकिस्तान के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, मेजॉरिटी फैमिली ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही जो मेजॉरिटी फैमिली है उसी के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है, और वही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है ना कंपनी की मेजर जो पोजीशंस हैं उसको क्या कर रही होती है, होल्ड कर रही होती है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है ना एक फैमिली के पास है, दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी जो है ना वो जरूरत पड़ जाती है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जहां पे डायरेक्टर्स हैं वो भी तो मैनेजमेंट के साथ मिलके कर सकते हैं, बल्कि इन्हीं डायरेक्टर की दो टाइप्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। देयर आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Executive directors are actually the directors who are actively taking part in the management of the business organization. For example, आपके डायरेक्टर फाइनेंस हैं, he is also a member of the board of directors. आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, he is also a member of the board of directors. जो CFO हैं या CEO हैं, he is also a member of the board of directors. तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, who are on the payroll of the company, who are actually working or taking part in the management of the company. और कुछ आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं who are actually not directly involved in the management of the company but they only participate in the board meetings. तो इस बैलेंस को क्रिएट किया जाता है ताकि इस तरह से किया जाए कि जो मैनेजमेंट है उनकी रिप्रेजेंटेशन भी रहे, लेकिन दूसरी साइड पे उन मैनेजमेंट के हाथों जो है ना शेयर होल्डर्स को एक्सप्लॉइट ना होने दिया जाए, बल्कि उसको किसी ना किसी तरीके से जो है वो मिटिगेट कर दिया जाए। बट परफेक्ट सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे के सारे रूल्स या लॉज जो है ना बनाए जाते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट, जस्ट टू इंश्योर के मिसमैनेजमेंट ना हो जो है ना उसमें। इसकी बिल्कुल एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर कानून जो है वो बना दिए जाते तो उसके मतलब ये है कि अगर चोरी की जो है ना वो सजा डिफाइन होगी और पुलिस का महकमा बन गया तो इसका मतलब है चोरी होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी बात है ना। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लॉ वहां पे है, लॉ इन्फोर्सिंग जो है ना एजेंसीज भी वहां पे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कितनी जो है इन्फोर्समेंट अच्छे तरीके से। लेकिन जस्ट एज्यूम कि अगर इस किस्म का कोई लॉ ही कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो है ना, ठीक है, या इस किस्म की लॉ इन्फोर्समेंट कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वहां पे क्या सिचुएशन होगी। तो सेम इज ट्रू विद दी कॉर्पोरेशंस कि अगर कोई गवर्नेंस मैकेनिज्म नहीं होगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स सिर्फ मैनेजर्स के रहमो करम पे होंगे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब वो कितने इफेक्टिवली जो है ना वो उसको जो है ना इंश्योर करते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी जो है ना। ठीक है जी। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो अपने मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं, एडिटर्स के साथ मिलकर बैलेंस शीट को बड़ा अच्छा दिखाते हैं, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो हाँ उसमें भी तो ये अपना काम दिखाते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैंने अभी कहा कि पुलिस वाले मिल के जो है ना वो चोरों के साथ चोरी भी करवा रहे होते हैं जो है ना उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है ना वो चोर हैं, बीच में कुछ ना कुछ जो है ना वो काली भेड़ें शामिल होती हैं जो है ना उसमें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनइफेक्टिव होंगे। आगे जाके इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ रबर स्टैम्प बोर्ड्स होते हैं कि बस सिर्फ वो नाम के बोर्ड होते हैं, काम शाम कुछ भी नहीं करते, बस जो एजेंडा आइटम आता है बस उसको सिंपली अप्रूव कर लेते हैं। कुछ यस मैन बोर्ड होते हैं कि बस जो कह दिया गया है बस उसको उन्होंने क्या करना है, अप्रूव करना है। तो ये इनइफेक्टिव बोर्ड्स की निशानी है जो है ना उसमें। तो उसको कैसे इफेक्टिव सर बनाना है आगे चल के इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो है ना वो उस चीजों को जो है ना हम ये डिस्कस इनकी सारे इंसेंटिव्स पे बड़ी नजर होती है, बोनसेस पे, और अपना जो है वो जी तनख्वाह बड़ी अच्छी जाए बिल्कुल होती है, तो। बिल्कुल होती है। तो ये एक और चैलेंज है कंपनी के लिए कि अच्छे पूल को, अच्छे टैलेंट को जो है ना एक्वायर करना, और उनसे फिर इफेक्टिवली जो है ना वो चीजों को जो है ना वो कराना, काम को कराना, इंश्योर करना जो है ना उसमें। अच्छा जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज। देयर इज अ लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी जो है ना उसमें। इसका क्या मतलब है
What is a limited company? Liability limited or unlimited. Limited by liability. Very right. Limited company is the one in which liability of the shareholders is limited. ठीक है जी. And unlimited company is the one in which liability of the shareholders is unlimited. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि when we talked about the sole proprietorship and partnership business organizations, we discussed that the liability of the owners is unlimited. उनके पर्सनल एसेट्स भी सेल किए जा सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से कॉर्पोरेशंस के अंदर अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कॉर्पोरेशंस हैं तो वहां पे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड. बट practically such kind of the organizations does not exist. By and large, almost all of the companies are having limited liability जो है ना. Theoretically हम उसकी bifurcation में डिस्कस करते हैं कि unlimited liability भी है. अब ये जो limited liability companies हैं, these are further divided into two categories. One is limited by shares and limited by guarantee. इसका क्या मतलब है? सर लिमिटेड बाय शेयर्स का ये मतलब है कि जितनी अमाउंट किसी बंदे ने इन्वेस्ट की हुई है, जितने शेयर उसने अमाउंट के लिए हुए, वो उसी का जिम्मेदार है. वो जितनी इन्वेस्ट की हुई है उसी तक है. और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि सर वो किसी हद तक बंदा गारंटी दे कि मैं इसके अलावा भी इस चीज तक का जिम्मेदार हूँ. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. शेयर्स के अलावा तो वो उस हद तक Limited, जिम्मेदार बन जाएगा. limited by shares का मतलब है liability of the shareholders is limited up to the amount of shares he or she is holding. जितनी amount के आपने shares purchase किए हुए हैं, you are only responsible for that. For example, आपने कंपनी में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी. अब कंपनी को लॉस जो है वो 50 मिलियन का हो गया है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जितना मर्जी जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जितना मर्जी लॉस है, यू वुड ओनली बी लायबल टू पे 500,000. मतलब दूसरे वर्ड्स में ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो जाया हो जाएगा, वो डूब जाएगा. इससे ज्यादा क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू विल बियर. But in case of limited by guarantee, you would be responsible to pay off the loan up to the guarantee that you have given. अब उसकी एक वजह होती है. उसकी वजह यह है कि अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स ही लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाएं तो ओवर एंड अबव जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? तो इसमें तो बड़ा आसान सा काम हो गया. जैसे भी बात हो रही थी कि डायरेक्टर्स भी जो है ना मैनेजमेंट के साथ मिलके जो है ना इनफेक्टिव काम कर सकते हैं. तो उस सिचुएशन में हुआ इस तरह से कि कंपनी डेट फाइनेंसिंग करती गई, डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज होती गई, कंपनी लॉसेस के अंदर जाने शुरू होगी. लॉस को रिकवर करने के लिए या दोबारा अपने आप को जो है ना रीगेन करने के लिए मजीद कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग को किया. अब जब कंपनी डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज करती गई तो अल्टीमेटली कंपनी का बैंकरप्सी की तरफ चलेगी जो है ना, या डिफॉल्ट की तरफ चलेगी. तो जब कंपनी वाइंड अप हुई तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि कंपनी की शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट थी लेट्स सपोज 50 मिलियन, और जो उन्होंने लॉस बियर किया था या जो उन्होंने डेट्स पे करने थे वो 70 मिलियन के थे. ठीक है. मींस शेयर होल्डर्स इक्विटी 50 मिलियन है, जो डेट उनके ऊपर जो है वो जो है 70 मिलियन का है. या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि सारे एसेट्स को सेल करके टोटल जो अमाउंट रिकवर हो सकती है वो 50 मिलियन की है, और जो उन्होंने लायबिलिटीज पे करने हैं वो 70 मिलियन के हैं. तो अब इसका मतलब है 70 में से 50 मिलियन तो पे हो जाएगा, बाकी 20 मिलियन का क्या होगा? तो उस ओवर एंड अबव लॉस को रिकवर करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जनरली उनमें से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ को लिमिटेड बाय गारंटी भी किया जाता है जो ना उसमें. ठीक है. इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी दे वुड आल्सो बी रिस्पांसिबल टू पे ओवर एंड अबव लॉस, ठीक है, फ्रॉम देयर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. तो उसकी वजह ये होगी कि शेयर होल्डर्स को जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे वुड आल्सो बी कॉशियस और केयरफुल कि हम कोई अननेसेसरी ऐसी चीज ना करें जिससे जो कंपनी है वो बैंकरप्सी के अंदर चली जाए. ठीक है जी. तो लिमिटेड बाय शेयर्स मींस दैट लायबिलिटी वुड बी लिमिटेड अप टू द investment or shares that they are holding, and limited by guarantee means that they would be responsible to pay off the loss or the debts up to the guarantee that they have given. ठीक है जी. Then there is private and public limited company. What's the difference between? Excuse me, sir. जी प्लीज. सर ये जो लिमिटेड बाय गारंटी में है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं, तो क्या जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही
लिमिटेड बाय गारंटी हो, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जनरली दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स को लिमिटेड बाय गारंटी भी किया जाता है, ताकि कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल हो ना कंपनी के जो है ना वो लॉसेस का, या कंपनी की जो है ना वो बैड परफॉर्मेंस का, कोई ना कोई जो है ना तो वो उसका जो है ना वो लॉस बियर करे। अदरवाइज तो शेयर होल्डर्स की जो है ना, देखिए ना बड़ा जी आसान सा काम हो गया कि मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हूँ, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी इंजॉय कर रहा हूँ, ह्यूज बोनसेस भी ले रहा हूँ, ठीक है, और जो फैसिलिटीज हैं उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ, और कंपनी का डाउनफॉल होता है तो हो जाए, मुझे उससे क्या नुकसान है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि जो एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो उस सूरत में जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो इस वजह से उसको सिक्योर करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या किया जाता है कि डायरेक्टर्स को लिमिटेड बाय गारंटी भी किया जाता है, बट ऑल डायरेक्टर्स आर नॉट लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ को जो है ना लिमिटेड बाय गारंटी कर दिया जाता है, ताकि ये है कि वो अपने रोल जो है ना रिस्पॉन्सिबली जो है ना वो प्ले करें। तो जनरली दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स, बट टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर लिमिटेड बाय गारंटी। सर जो डायरेक्टर्स लिमिटेड बाय गारंटी होंगे, ऑब्वियसली उनका जो जिस तरह आपने कहा जी के हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न, तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहा होगा बाकी शेयर होल्डर्स के। बिल्कुल सही है, मैं भी जो है ना उनका मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बाकी जब डिविडेंड। बिल्कुल ऐसे है, प्रेफरेंस शेयर्स उनको दिए जा सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो है ना वो दिया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा तो एक्स्ट्रा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, अदरवाइज किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि किसी और की जो है ना गलती अपने सर जो है ना वो ले लेंगे। ठीक है जी। Then what is the difference थैंक यू between a सर। private and public limited company? सर प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक जो है वो नहीं ले सकती, शेयर्स उनके सेल नहीं हो सकते जनरल पब्लिक को, जबकि जो पब्लिक लिमिटेड में जो है वो जनरल पब्लिक कोई भी उसका शेयर परचेज कर सकते हैं। सर पिछली ओपन क्लास में मार्केट में वो आपने सेल होती है, स्टॉक मार्केट। ये भी बताया था कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जी वो कंफर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, वेरी गुड जो है ना उसमें। तो इसका मतलब पहला डिफरेंस तो ये होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट ऑफर देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को ये शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती। Whereas a public limited company can offer the shares to the general public. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं जब वो शेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं, जब आईपीओ कर रहे होते हैं, and against those that IPO the shares are offered to the general public. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सेकेंडली जो उसकी सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, सिंस देयर आर लिस्टेड कंपनीज, तो देयर शेयर्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, तो उनकी सब्सिक्वेंट जो बाइंग एंड सेलिंग होगी वो कहाँ होगी? स्टॉक मार्केट में। Whereas the private limited companies cannot trade their shares in the stock market, तो उनकी जो buying and selling है वो through private placements होगी या through direct selling होगी, जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में उनकी buying या selling कर सकते हैं। And the third major difference is in case of a private मेंबर्स के company, जी, there could be 2 to 50 members, और पब्लिक में कितने होते हैं? पब्लिक में नॉन लिमिटेड होते हैं सर, जी, उसमें कोई Minimum लिमिट नहीं बताई गई होती, वेरी गुड। मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कुड लिमिट बी नहीं। अनलिमिटेड। और ये लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्या फर्क है? लिस्टेड वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड होती हैं, बिल्कुल ठीक उनको है। लिस्टेड कहा जाता है, और और जो लिस्टेड नहीं होती उन्हें वेरी गुड, जो स्टॉक मार्केट में जो है ना लिस्टेड है, जो एक्टिवली जो ट्रेड हो रही हैं वो लिस्टेड हैं, जो स्टॉक मार्केट में नहीं है वो आपकी अनलिस्टेड जो है ना वो नॉन चीज है जो है ना उसमें। जी सर। ठीक है जी, ऐसा भी सर हो ये तो सकता वही बात होगी पब्लिक और प्राइवेट वाली। नहीं, वो भी है, और दूसरा ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में से कुछ कंपनीज अनलिस्टेड हो सकती हैं। मींस ये है कि स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करने की वजह से भी किसी कंपनी को क्या किया जा सकता है? डीलिस्ट किया जा सकता है। या इसी तरह से कोई जी सर। कंपनी ये चाहती है